everyone, this is Seema Saxena, and today we are meeting a wonderful author who has written a self-help book which is talking about mindfulness, embracing the present, happiness, and so many things which will give us strength. We have heard a lot about resilience, mindfulness, and so many such things in self-help books. But today we are talking to Dr. Saroj Dubey. He is a gastroenterologist at Noida, Kailash Hospital. And today let's learn from him what's different in his book and how easily he is talking about being in present, embracing the present, and mindfulness. So let's start. Hi everyone, welcome to the Book Talks by Jash Events. Today we have Dr. Saroj Dubey with us for the Book Talks, and today he's going to talk about his book RX for Resilience. What we all know about RX for or I'm talking about resilience. RX I think is for the prescription thing, which I heard from you only. So what we know about resilience is it's something which gives us strength to bounce back from our challenges. Yes. So, sir, please tell us about your book. Okay. Yeah. And thank you, Seema, for hosting this book talk and book show. And I'm Dr. Saroj Dubey for the viewers' benefit. So I'm a gastroenterologist and an author. This is my first book, RX for Resilience, which is published by Hay House. So Seema, as you said, resilience is about bouncing back from adversity. And in this book, what I have described is a very challenging episode which happened to me on a professional basis, in which a patient had this thing, met with a complication and finally died. And that it was a big setback for me, and there was a lot of you can understand fear and a lot of I would say humiliation also, and anxiety about it. And that led me to a process of self discovery, because I wanted to know all about life, how things happen, and what is the way to go about it. So this book is all about how we can be resilient in the face of adverse circumstances. And the name RX for resilience is RX, as you know, as a for doctors, we the first thing we write is RX, which is the short form for prescription. So we always start with, okay, it can be a low fat diet or salt restricted diet, then we write the medicine and antibiotic or Yes. whatever. So I thought, I have written so many prescriptions all my life as a doctor, initially as a physician, then as a gastroenterologist. But I think this RX for resilience is something which is closest to my heart, because life is not just about our profession and the work we do. It is about overcoming tough situations, happiness, creativity, joy. And in this RX for resilience, I have outlined various factors which can help us overcome challenges and lead a more joyful and fulfilling life. So, sir, you talked about a lot of things. I just want to know in your profession, definitely resilience is very helpful. But how you came from, came as an author, being a Yes. doctor. Yeah. Yeah. So as you know, okay, as being a doctor, it's there's a we have a very busy life, and especially I'm in Kailash Hospital, Noida, so things are very busy over there, and it's tough to even write an article, leave alone a book. But this whole journey and this process was so, I would say, life transforming and powerful, that when I was undergoing it, and when I kind of reached a certain clarity about how things are and how to go about things, I wanted to share it. This was my innermost this thing, that what I had understood and what I had realized through this whole process, I wanted to share it with people. And the best way was to write about it. So initially I thought, okay, I'll just maybe write a few maybe pages or something, a few chapters and all, and I'll just keep it, and maybe just a pamphlet or something. But once I started writing, and I just started with small, say 100 words a day or something. But then things started coming, ideas came, the momentum built up, and it took the shape of a book.
So that is how it happened. And once I wrote it, then I discussed it with my friend and editor Suma. When she read the draft initially, she was very very impressed and very moved. She said that no, we should give it to a traditional publisher because there's a lot of insight. And then we approached Hay House, and that is the way we took it forward. And sir, I can see that the book is doing so well. People are loving it. Like there are lot many books on resilience and self help, but there are lot many things you have explained in this book. Yes. So I think that is helping people. And Yeah. with that, I would like to tell the audience that book is available worldwide through online platforms. And if you No, want to and go also for I'll offline, yes, yeah, sir. no, now just last week the publishers were told me that earlier it was internationally only on Kindle, Online. but now it's internationally on paperback. Oh, also. wonderful. Now this happened last week. So we So have US, Australia, Europe, Oh, everywhere great. it's available. So it's offline worldwide. In India, you can find the book at all the big stores, all the leading bookstores, and as Sir said, it's It's offline available. also worldwide. So, sir, my next question with you is like people generally tell us the pillar of resilience, like एक वो पढ़ाई कराने के लिए बोल देते हैं हाँ, कि बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी चीज़ है। भी आती है, हैप्पीनेस, माइंडफुलनेस, इतनी सारी चीजों की बातें करते हैं। हम्म। आपकी बुक क्या अलग बात करती है दूसरी किताब से? दूसरे हिसाब से ना, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि रेजिलियंस पे, सेल्फ हेल्प पे तो इतने सारे बुक्स है, देयर आर सो मेनी बुक्स ऑल अराउंड। एंड अगर मैं अपने व्यूअर्स अगर सोचे कि चलो ये बुक मैं पढूं, तो क्यों पढूं, है ना, क्या इसमें फैक्ट है। इस होल जो एपिसोड में जो मैंने डिस्क्राइब भी किया अपने इनिशियल चैप्टर्स में, बहुत सारे फीलिंग्स थे, फियर, एंजाइटी, very kind of unpleasant, uncomfortable emotions. And in this journey, what I realized is कि I have to stay open to all the feelings. ज्यादातर क्या होता है, जब कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन होते हैं तो हम उसको सप्रेस कर देते हैं ना। सोचो हमें थोड़ा वी आर फीलिंग बिट लो या अपसेट, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, सप्रेस करते हैं, दबा देते हैं, फिर कुछ और करो, किसी से बात करो, शॉपिंग करो, मूवी देखो। इसमें चूंकि एक मेरा बैकग्राउंड था मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस का, तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि ओनली इफ आई एम टोटली प्रेजेंट एंड ओपन विद व्हाटएवर इज हैपनिंग, तभी हम उसको लाइक जैसे हम बोलते हैं, तो ओनली वे आउट इज थ्रू। तो जब तक कि उसको हम ओपनली फेस नहीं करेंगे, then I will not be able to overcome the things, वो कहीं ना कहीं दबा रहेगा। So what I'd like to tell the viewers is कि जो खास बात मुझे लगा is कि I somehow I had the courage, and वो उसको मैं grace ही बोलूँगा, to face all the feelings openly, to be very present with it, not to try to suppress or distract। और उस जर्नी में जब मैं ओपन था, तो आई रियलाइज कि वी आर सराउंडेड बाय अ वास्ट स्पेस। एक स्पेस है जो कि न्यूट्रल है, एंड विच कैन सराउंड एनी काइंड ऑफ इमोशंस। सो वो स्टेट ऑफ प्रेजेंस जब हमारे अंदर रहता है, दैट इटसेल्फ इज द आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेजिलियंस। सो उससे मुझे जो ये पता चला कि कुछ भी हो, हम एक्सटर्नली कुछ भी हो, देयर इज एन इनर लाइट ऑफ रेजिलियंस एंड प्रेजेंस which can help us overcome। So मैं यही बोलूँगा कि इसमें जो जो खास बात है इसमें, वो ये है कि सिचुएशन कुछ भी हो, सिचुएशन को हम अपने अनुकूल नहीं कर सकते, लेकिन वी कैन ऑलवेज स्टे ओपन टू इट एंड से यस टू इट, कि जो भी है हम उसको स्वीकार करते हैं, अनकंडीशनली हम उसको एक्सेप्ट। बहुत अच्छी बात है। जनरली यही होता है कि हम लोगों की कुछ भी इस तरह की फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, जो हमें लगता है शायद सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी, हम उनको हाँ, नहीं, सामने वाले से भी ज्यादा हमें खुद लाइक क्या होता है कि अगर कुछ भी हमें, एक्चुअली हम लोग का जो कंडीशनिंग है राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, वो ये है कि वी थिंक कि हमें अच्छे इमोशंस ही होने चाहिए। मतलब इफ यू आर फीलिंग हैप्पी, जॉयफुल, तो बहुत अच्छी बात है। और शुरू से ये है कि कहीं अगर हम अपसेट है, एंग्री है, सैड है, तो हमें लगता है कि कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, तभी ऐसा है। तो वी फील कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, बट एक्चुअली ये इमोशंस है, ये आएंगे, हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना है। और अगर हम उसको एक तरह से क्लोज लाते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं,
when we don't resist it, then we see कि हर emotion आएंगे, थोड़ा देर stay करेगा, and then it will be. So this was a big learning for me, क्योंकि मैं भी बचपन से यही था कि कभी भी कुछ अगर जनरली मेरा नेचर काफी खुश मिजाज का है, ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी, पर कभी कुछ अगर चीजें नेगेटिव होते हैं या मैं अपसेट होता हूँ तो मुझे लगता है अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है, एंड आई वुड रेजिस्ट इट, और लगता था कि हटाओ इसको जल्दी से, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कुछ और करता हूँ जिससे कि आई वुड फील बेटर. पर जब ये सिचुएशन आया तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि आई हैड टू एक्सेप्ट ऑल दोस फीलिंग्स, एंड आई रियलाइज कि हम जितना उसको अपने पास लाते हैं विदाउट resisting it, then actually that gives us a kind of the resilience to overcome, है ना. और वो एक काइंड ऑफ चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस था कि चीजों को रेजिस्ट नहीं करके, दूर अपने से नहीं हटा के उसको पास. तो हम ये बोल सकते हैं इजी वर्ड में कि आपकी जो बुक है वो एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट या बोल रही है एक्सेप्टेंस के ऊपर Yes. बहुत ज्यादा. बिल्कुल सही है ना कि जी embracing the present moment in whatever form it comes. चक्कर क्या है कि हम लोग प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस तो करते हैं जब चीजें ठीक, if we are joyful, if we are happy, if we are feeling very optimistic, तो हम बोलते हैं हाँ, be in the present and embrace it. और जब हम थोड़ा नेगेटिव होते हैं, फियरफुल होते हैं, सैड होते हैं, तो हमें ये प्रेजेंट मोमेंट अच्छा नहीं लगता है और इससे हम दूर हटना चाहते हैं. पर इसमें ये है कि विद एन ओपन हार्ट, अनकंडीशनली उसको एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो है वो तो है ही. सो वी एक्सेप्ट इट विदाउट रेजिस्टेंस एंड सेइंग यस टू दिस. इट्स वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल मैसेज है. आई वुड से कि हाँ, क्योंकि अगेन यही है कि जैसे बहुत बार जो भी ज़्यादातर हम हर तरह के, जैसे मैं तो एक सेल्फ हेल्प बुक का एक कीड़ा हूँ, फ्रॉम बचपन से, और स्पेशली हे हाउस और इनकी बुक्स तो मैं बहुत पढ़ते रहता हूँ, एंड आई ट्राई टू अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और इसके लिए आई जस्ट ट्राई टू कीप लर्निंग एंड नोइंग. एंड ज़्यादातर ये पढ़ा कि हाँ, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलती है कि आप पॉजिटिव सोचो तो थिंग्स विल हैपन, एंड दैट इज गुड. वो अच्छा है विजुअलाइज करना, अफर्म करना. लेकिन जो एक चीज जो मिसिंग है उसमें, जो मैं अभी ये सब के बाद रियलाइज किया और अगेन इस बुक से कन्वे करना चाहता हूँ, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी गुड एंड इट इज वेरी यूजफुल. जब आप कोई गोल अचीव करना चाहो तो वो है कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव आए. लेकिन लाइफ में नेगेटिव चीजों, वो भी हमारा पार्ट है ना. जैसे एक अगर बच्चा है, उसके कुछ अच्छे अगर क्वालिटीज है तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं, और जो नेगेटिव क्वालिटीज को हाइड करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो तो हमारा बच्चा है. सो ऑल दीज फीलिंग्स, आवर शैडोज ऑल्सो आर पार्ट ऑफ अस, एंड हम उसको रिजेक्ट नहीं करें. एंड व्हेन वी एक्सेप्ट इट, वी रियलाइज देयर इज स्पेस फॉर एवरीथिंग. There is space for joy, there is space for happiness, optimism. Also, there is space for sadness, for unhappiness, for guilt, for sorrow, fear, सबके लिए जाता बहुत अच्छी बात है. सर जैसे आपने बच्चों की बात करी, है. तो जनरली क्या होता है, जैसे हम लोग सेल्फ हेल्प बुक की बात करते हैं या जैसे हम रेजिलियंस की बात करें, माइंडफुलनेस की बात करें, तो सब जो जनरेशन एक है ना डिवाइडेड है, तो उन लोगों को लगता है कि अरे ये तो ना बड़े लोगों की बात है. बिल्कुल. ये हमारे काम का नहीं काम है. का नहीं है. जबकि ये जो लर्निंग है ये तो बिगिनिंग से ही हमें एक्सेप्टेंस वाला जो चीज़ है वो हमें शुरू से आ जानी चाहिए. बिल्कुल. लाइक आपने तो एक टाइम में जब आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, आपने उससे लर्न कर, बट आपने इतना अच्छा हम लोगों के लिए एक लेसन पूरा बना के दिया है कि हम लोग की लाइफ में वो पूरा गाइडलाइन काम आएगा. और ये आपने जी. बिल्कुल सही बोला कि these kind of learnings about acceptance, non resistance, being present, ये बचपन से होना चाहिए. जी जी जी. क्योंकि जनरली जो मैंने फिर जब ये सारा जर्नी के बाद मैंने देखा कि मैं खुद कैसे था, जी. कि अगेन टू एक्सेप्ट थिंग्स विच आर गुड एंड पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ों को दबाना. फिर मैं रियलाइज किया कि ये टीचिंग कहीं ना कहीं बचपन से ही हमें मिली है ना, कि चीज़ अच्छे है तो उसको ये करो और बुरी चीज़ को दबाओ. सो ये जो लर्निंग है, टीचिंग है, ये इट शुड स्टार्ट फ्रॉम चाइल्डहुड, और काफ़ी जगह हो भी रहा है. आई नो कि
यूएस में, यूरोप में, क्योंकि माइंडफुलनेस का काफ़ी ज़्यादा ये है, तो वहाँ पे स्कूल्स में ही माइंडफुलनेस क्लासेस है। एंड आई एम श्योर इंडिया में भी बहुत आएगा। हालांकि ये सब का रूट अगर है तो ये सारा अपने इंडियन कल्चर से ही है ना, वो है। लेकिन हाँ, जो इसको माइंडफुलनेस टर्म एक बाहर वेस्ट में दिया गया कि उसको एक अच्छा पैकेज बना के जिससे चीज़ें समझ में आए। जैसे योगा भी, योगा तो सब, योग तो सब इंडियन है, लेकिन वो पॉपुलर हुआ बाहर से। तो उसी तरह माइंडफुलनेस जो है वो सारा कल्चर इंडियन है, बुद्धिज्म है, लेकिन वो पॉपुलर बाहर से हुआ। और अगर हम अपने बच्चों को भी अपने बच्चों को शुरू से ही बताएं कि चीज़ें सब तरह से होंगे, आपको एक्सेप्ट करना है, उसको रेजिस्ट नहीं करना है। एंड यू हैव टू इवन जो चीज़ें जिससे हमें फियर होता है, जैसे मैं अपने ये सब के बाद, मेरा जो बेटा है उसको पब्लिक स्पीकिंग से बहुत फियर है ना। पब्लिक स्पीकिंग क्या मतलब, इवन स्ट्रेंजर्स से ये करने के लिए, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि देखो ये सबके साथ होता है। किसी को कोई चीज़ से फियर है, किसी को किसी और से। द मेन थिंग इज कि हम छोटे छोटे स्टेप्स ले कि उसको ओवरकम करने के लिए उसको एम्ब्रेस करें उस चीज़ को। सो आई एडवाइज हिम कि तुम पहले छोटे मोटे में भी एक दो स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करो, एंड देन यू विल सी कि सून यू विल। यहीं से सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है कि आपने ना आपकी बुक में क्रिएटिविटी की बात है, तो हम इसको ना कहीं यंग जनरेशन के साथ रिलेट कैसे कर सकते हैं और आपने कैसे किया? हाँ बिल्कुल। तो जब जैसे इसमें बुक में मैंने शुरू में तो चैप्टर्स अबाउट जो अपने इमोशंस और बीइंग प्रेजेंट टू इट, बीइंग अवेयर ऑफ इट, एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ये सब के बारे में बोला। फिर बाद में माइंडफुलनेस और बीइंग प्रेजेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम नेगेटिव इमोशंस के साथ कैसे डील करते, वो तो है ही, पर साथ में व्हेन वी बिकम मोर प्रेजेंट एंड माइंडफुल वी बिकम मोर जॉयफुल। क्योंकि हम एक तो छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ ऑ एंड वंडर देखते हैं, क्योंकि जब हम थोड़ा प्रेजेंट रहते हैं, स्टिल रहते हैं, तभी हम चीज़ों को नोटिस करते हैं कि अरे वाह, कितने छोटे छोटे जगह में सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड मोमेंट्स आते हैं। एंड क्रिएटिविटी भी, मैं सोचता था कि मैं एक बिल्कुल भी नॉन क्रिएटिव पर्सन है ना, क्योंकि मुझे पेंटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक पसंद है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। फिर जब मैं इस प्रोसेस में उतरा एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग, और मैंने अपने बुक में भी बहुत ये एग्जांपल्स दिए, तो आई रियलाइज कि एक्चुअली ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव। क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि आप पेंटिंग या आर्ट या म्यूजिक करते हो। द वे वी टॉक टू पीपल, हमारे किस तरह से हम दूसरे के साथ उनको अप्रोच करते हैं, एक स्माइल, हमारा बहुत बार सिर्फ एक बढ़िया स्माइल कैन मेक द डे ऑफ अनदर पर्सन। द वे हम कितने कंपैशनेट होके दूसरे के साथ वी डील विद देम, ऑल दीज क्रिएटिव थिंग्स। डे टू डे जो भी हम करते हैं वो क्रिएटिव है। दूसरा, एक बहुत अच्छा बुक था माइंडफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, जिसके बारे में मैंने अपने चैप्टर में लिखा भी है। व्हाट आई ऑल्सो रियलाइज्ड इज कि हम जब ये प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस का, जो अगेन मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो दैट ओपन्स अप आ क्रिएटिविटी। हमारे एक्चुअली ब्रॉडली हम अगर देखें ना, तो दो टाइप के थिंकिंग होते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको बोलते हैं, जो रैशनल है कि हाँ ये 2+2 एंड 5-2, एक रैशनल लॉजिकल थिंकिंग, जो कि नॉर्मली लोगों में जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं उसमें होता है कि आप ये सोचते हो, पहले का आगे का सोचते हो, प्रोएक्टिव होते हो, ऐसे होगा तो वो होगा, उसका क्या हम जवाब देंगे, दैट इज कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग है जो हमारे इंट्यूशन से आता है, जिसको हम बोलते हैं आउट ऑफ द ब्लू, एक आइडिया आया, बैठे हुए सडनली नहा रहे हो, शावर में हो, कुछ आइडिया आता है, और जिसको हम यूरेका मोमेंट्स बोलते हैं कि अरे वाह ऐसे। तो कुछ बहुत बढ़िया गाना या म्यूजिक कंपोज होता है, कुछ मूवीज के आइडिया होते हैं, कुछ बुक्स के आइडिया होते हैं। और ये इसमें बहुत स्टडीज हुए हैं कि जितना हम माइंडफुल होते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, स्पेशली एक ओपन अवेयरनेस मेथड है जो मैंने डिस्क्राइब किया है, अबाउट दिस सिटिंग एंड अलाउइंग ऑल थॉट्स टू कम, दैट इनहांसेस आवर क्रिएटिविटी। और जब मैंने बुक भी लिखा तो ये मैंने खुद आजमाया कि जब हम थोड़ा सा साइलेंस में बैठते हैं, अपने साथ बैठते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं। तो इसीलिए मैं अगेन अपने स्पेशली यंगर व्यूअर्स एंड सभी को इनकरेज करूँगा कि थोड़ा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और करें, एंड यू विल सी कि इट इज़ नॉट एज ए सेड कि अपने
नेगेटिव इमोशंस को भी उससे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस भी, एंड इट मेक्स यू मोर क्रिएटिव। नो वेरी फ्यू पीपल नो कि माइंडफुलनेस का ये एक बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ बाई प्रोडक्ट है। सो बीइंग क्रिएटिव, एवरीवन वांट्स टू बी क्रिएटिव, जो भी आप प्रोफेशन में हो, सो दिस हेल्प्स अ अगेन ए वेरी गुड मैसेज फ्रॉम योर साइड सर। इसी के साथ अभी मुझे क्लिक करा कि आपका टेडेक्स टॉक भी था लॉट। यस। तो आई थिंक दैट हैपेंड बिफोर दिस बुक। हाँ, वो एक्चुअली बुक से मैंने कुछ चीजें लेके जी उसको जी, आपका बनाया प्रोसेस था। में था हाँ, बुक नहीं और बुक तो तब तक पब्लिकेशन के लिए चला जी गया जी था, जैसे क्योंकि इसमें ये है हाउस में दिया, ट्रेडिशनल पब्लिशर्स टाइम लेते हैं, वो लगभग 1 साल, जब एक बार एक्सेप्ट करते हैं फिर 1 साल का उनका प्रोसेस होता है। तो ये 21 में एक्सेप्ट हुआ था, एंड फिर वो फाइनली तो अब जाके रिलीज हुआ। तो उस बीच में क्या था कि फिर ना बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स भी थे, फ्रेंड्स भी थे, वो बोले कि अच्छा सरोज, सपोज अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं ये सब थोड़ा भी टाइम माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में दूं, तो भी क्या हम बिजी प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऐसा नहीं है जो कि हमारा लाइफ को और एनहांस करे, और इट विल मेक अस मोर हैप्पी इवन इफ वी डोंट गिव टाइम टू ऑल दिस थिंग्स। तो बुक से ही मैंने एक वो 15 मिनट का एक वो टॉक तैयार किया था, क्योंकि टेडेक्स का फॉर्मेट होता है 15 मिनट्स का, तो 15 to 17 मिनट्स का, तो वो द आर्ट ऑफ डूइंग एंड बीइंग है ना, वो मैंने किया। तो हम डूइंग तो करते रहते हैं, भागते हैं जो भी अपने काम में, वी आर ऑलवेज डूइंग वन थिंग आफ्टर अनदर कर रहे हैं। बीइंग है टू टेक अ पॉज, है ना, टू टेक अ पॉज, इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहे, just to take a pause to create more space which allows you to become more joyful and more present. So हम अगर being और doing दोनों को merge करते हैं, तो we are able to perform much more and at the same time we feel much better also. So ये प्रोसेस में हमने 6 स्ट्रेटजीज दिए थे, जिसमें एक तो माइंडफुलनेस है, बीइंग प्रेजेंट। सेकंड इज नॉन डूइंग, जिसको निक्सन बोलते हैं, डच वर्ड है। नॉन डूइंग मतलब क्या होता है कि संडेज में भी अब देखेंगे कि बहुत सारे काम होते हैं, एक संडे का छुट्टी, या हम कभी वेकेशन भी लेते हैं तो भी बहुत सारी चीजें, ये भी करना है वो भी करना है ना, पर हमें कुछ टाइम जस्ट देना चाहिए जिसमें हम कुछ भी नहीं, नॉट डूइंग एनीथिंग। थर्ड इज स्पेस। नाउ व्हेन वी अगेन, चाहे हम थोड़ी देर साइलेंस में बैठे, वी आर सिटिंग, वी आर गिविंग सम, टेकिंग सम पॉजेज एंड गैप्स इन आवर डेली रूटीन, उससे स्पेस क्रिएट होता है। स्पेस क्रिएट होता है बहुत इनर, हमें अंदर से लगता है कि हाँ सब चीज के लिए स्पेस है, और बाहर भी हम मोर रिलैक्स होते हैं। फोर्थ इज सेवरिंग, है ना। सेवरिंग है कि बहुत चीजें, जैसे इवन अगर हम कुछ टेस्टी कभी लंच डिनर या छोटा मोटा स्नैक भी लेते हैं, तो हम उसको हड़बड़ी में लेते हैं, वी डोंट रियली टेस्ट, एंजॉय। तो सेवरिंग इज अबाउट लिंगरिंग ऑन टू अ पॉजिटिव मोमेंट, अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, सो दैट वी प्रोलॉन्ग इट। एंड ये सिर्फ खाने पीने का नहीं है, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले कि सीमा आपने बहुत अच्छा एक होस्ट किया या टॉक किया, तो जनरली हम लोग रहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है हाँ वेरी गुड थैंक यू करके, पर उसको हम ये थे, अगर हमारे दिन में 20 या 25 पॉजिटिव हमें एक्सपीरियंसेस या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, पर एक अगर नेगेटिव मिले, तो हम पॉजिटिव वाले को भूल के नेगेटिव वाले को ही दिन, अच्छा उसने ऐसे कैसे बोला, क्यों बोला, है ना। तो सेवरिंग इज की इस जो पॉजिटिव मोमेंट्स है, उसको एक तरह से हम अगेन हम उसको एक तरह से याद करके एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ऑब्जॉर्व कर रहे हैं ना। सो दिस ट्रेन्स आवर माइंड इनटू पॉजिटिव न्यूरोप्लास्टिसिटी। एंड फिफ्थ हो गया ऑ एंड वंडर, जो मैंने शुरू में बताया कि हम ऑ और वंडर सोचते हैं कि वेकेशन में ताजमहल, नायग्रा ये सब देख रहे हैं तो वो ऑ है, बट एक्चुअली बहुत छोटी छोटी चीज, जैसे आप ये देखिए, ये रेस्टोरेंट की कैफे कितना अच्छा से बना है, वेरी नाइस, वेरी पीसफुल। तो ऐसे अगर हम थोड़ा प्रेजेंट होते हैं, तो छोटे छोटे मोमेंट्स ऑफ ऑ एंड वंडर देखते हैं। कभी हमारे घर में कोई कोई अच्छा कुछ हुआ या समथिंग, दैट इज अ मोमेंट ऑफ ऑ, है ना। एंड द लास्ट इज फ्लो। फ्लो वो होता है कि अगर हम कोई काम में इतने अब्जॉर्ब हो जाए कि हमें पता ही नहीं चले घंटे बीत जाए। हो सकता है इट मे बी रीडिंग अ गुड बुक और वॉचिंग अ मूवी और सम गेम्स और समथिंग। तो ऐसे सभी के
चाहे जो भी है, हमारे कुछ ना कुछ फ्लो मोमेंट्स होते हैं। जैसे मुझे अगेन रीडिंग है, कभी टॉकिंग में, यू नो आई लाइक टॉकिंग अबाउट ऑल दीस थिंग्स, तो वो फ्लो देता है। तो मैं यही इनकरेज करता हूँ। या किसी को गेम्स में हो सकता है कि बहुत बिजी हो लेकिन क्रिकेट पसंद हो, तो चाहे क्रिकेट के लिए टाइम निकाले देखने में या खेलने में, भले हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाए। सो दीज मोमेंट्स ऑफ फ्लो अगर हम अपने दिनचर्या में उसको यूज करेंगे, दैट विल इंक्रीज आवर हैप्पीनेस। सो ये वो टॉक का सारांश था। एक ब्रीफ में ब्रीफ में तो मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगी, इफ यू डोंट हैव दैट मच टाइम, अगर आप उतना ज़्यादा रीड नहीं कर पा रहे हैं, बट दो हम हमेशा इनकरेज करते हैं कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड, एंड इस बुक में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। बट अगर आप शॉर्ट में उसका ब्रीफ लेना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर द टेड टॉक ऑफ बाय डॉक्टर सरोज दुबे, जिसका लिंक हम इस वीडियो के साथ में पोस्ट कर देंगे। यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन hear him मतलब ऑल talking दीज, about हाँ, all these बहुत things in छोटे छोटे details. टिप्स हैं। Just 15 minutes का है, तो I don't think It's in very, your yeah, busy schedule anybody can वो take तो it कहीं on. भी हम चलते फिरते गाड़ी में हम कभी भी, और एक्चुअली ये सारी चीज बहुत सारे इसमें, क्योंकि आप देखेंगे एंड में मैंने बहुत सारे ऑथर्स को क्योंकि कोट किया है इसमें, टोटली अराउंड 70-80 या 100। तो बहुत लोग का फीडबैक जो हमें मिला कि जो आपने डॉक्टर दुबे बुक जो किया वो लिखा वो तो बहुत अच्छा है ही, और साथ में इतने सारे हम ऑथर्स के बारे में भी जान गए, जिसको मैंने कोट किया। फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको कहाँ से टाइम मिलता है इतने बुक्स में, इतना बिजी रहते हैं और क्या। तो मैंने कहा कि आधे से ज्यादा जो चीजें मैंने इसमें लिखे हैं, बहुत चीज मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, सुना हूँ। क्या होता है कि वो भी एक मैंने कहीं कोई टेडेक्स टॉक में ही इसके बारे ये था कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं, जैसे मैं ड्राइवर चलाता है, मैं पीछे बैठता हूँ, तो 15-20 मिनट कभी आधा घंटा भी हुआ, तो आप कोई एक सुन लिए टेडेक्स टॉक, उस समय अगर नहीं भी पढ़ पाए कोई एक अच्छा टॉक, चाहे टेडेक्स हो या कोई भी वीडियो टॉक सुन लिए। कभी आप जॉगिंग जा रहे तो अगेन सुनते हुए जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो दिन में हमारे 40 से 50 मिनट ये छोटे छोटे वीडियोस और टॉक्स में निकल सकते हैं। और लगता है कि अच्छा 40 मिनट कितना है, लेकिन आप 40 मिनट को अगर मल्टीप्लाई करो 30 डेज से और ओवर 1 ईयर, तो आप सोच सकते हो कितने सारे इंफॉर्मेशन। तो वही मैं अपने अगेन व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप 40 मिनट भी नहीं, 10 मिनट का कुछ सुनो, चाहे अगर आपको पढ़ने का भी टाइम नहीं है तो मैं बोलूंगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऑडियो बुक्स भी आ रहे हैं और मतलब वीडियोस ये आ रहे बहुत अच्छा टिप आप दे रहे हो, क्योंकि आजकल ना जितना भी यूथ है, यंग जनरेशन में, हर किसी के पास मोबाइल, लेकिन ये लोग ना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं रील्स वगैरह देखने में। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, वो भी करो आप अपने लेजर टाइम में, बट बेटर है कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास 15 मिनट्स 20 मिनट्स का टाइम है, तो आप कोई भी इंस्पायरिंग वीडियो देख सकते हो, इंस्पिरेशनल टॉक्स देख सकते हो। बिल्कुल, है ना वो, इनसे और आपको लर्निंग भी मिलेगा, बहुत मिलेगा। और मतलब यू बी अमेज अगर सिर्फ आप ये रखो टारगेट 10 मिनट अ डे। 10 मिनट तो एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है ना 10 मिनट, पर 10 मिनट अ डे अगर आप एक टॉक या एक, अगर उस टॉक से आपको एक मैसेज भी मिलता है तो आप देखोगे इन अ मंथ कितने आपके पास मैसेजेस होंगे, इन अ ईयर कितने हो जाएंगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा फिर क्या होता है, अगर आप एक बार ये हैबिट बना लेंगे, तो आज आप 10 मिनट कर रहे हैं, कल आप 20 मिनट करेंगे, परसों आप खुद ही 45 मिनट्स आराम से निकालोगे। मतलब ऐसे 2-3 घंटे भी कुछ नहीं है। पर व्हाट आई एम सेइंग इज स्मॉल मोमेंट्स को हम कंसिस्टेंटली हम अपने शेड्यूल से निकाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी देर कुछ भी। और आजकल तो यही तो आई वुड से हम टेक्नोलॉजी को ब्लेम भी करते हैं, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मल्टीटास्किंग हो रहा है, बच्चों का ध्यान वहाँ जा रहा है, लेकिन बहुत सारे अच्छी चीज भी है। ये है कि जहाँ भी हो, कहीं का भी टॉक हो, चाहे वो यूरोप हो, इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी लीडर का हम मैसेज, चाहे वो यूट्यूब में होगा, वो अवेलेबल है, वो सारा चीज। वही सर, जब भी रीडिंग एनकरेज करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि इट्स हैबिट, मतलब आपको बनाना पड़ता है, और फिर ना हैबिट एडिक्शन टाइप्स हो जाता है, जिसको पढ़ने का आदत हो गया वो या अच्छा सुनने का आदत हो गया, तो वो हैबिट। और इसमें अगेन अपने हैबिट्स को लाया तो लास्ट जो चैप्टर है ना, वो मैजिक ऑफ हैबिट्स है। बिकॉज व्हाट आई फाउंड इज कि अगर हम कंसिस्टेंटली अपने लाइफ में ये पॉजिटिव हैबिट्स निकाले, जो मैंने 5-6 अपने हैबिट्स भी लेबल किए, जैसे ये मेडिटेशन का,
चाहे वो कोई 5 मिनट करे, कोई आधा घंटा भी करे, जितना भी करे, माइंडफुलनेस का, बीइंग प्रेजेंट, इट्स अ हैबिट. वंस यू स्टार्ट बीइंग प्रेजेंट एंड बीइंग मोर माइंडफुल, वो हैबिट बन जाता है. यही सब चीज सेवरिंग का एक हैबिट बनाए कि हाँ चलो आप चाय पीते हैं, थोड़ा सा जस्ट ट्राई टू एंजॉय. कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, देन यू आर जस्ट एंजॉयिंग इट रादर देन कि अच्छा हाँ ये तो ऐसे ही बोलता है ना. Then about listening to these positive talks, inspiring messages, तो ये सारी चीज जो है ना वो हैबिट्स होते हैं. एंड इनफैक्ट इसमें मैंने कोट भी किया था अबाउट हैबिट्स, क्योंकि हैबिट्स के 2-3 बड़े अच्छे बुक्स हैं. एक तो एटॉमिक हैबिट्स है जेम्स क्लियर का, जो कि इट्स वेरी फेमस. तो उसमें यही बोलते हैं कि हैबिट्स आर लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना. कि क्या होता है कि हैबिट्स जो है, आपका जो 5 मिनट्स अ डे, वो सिर्फ 5, 10, 15 नहीं होता है, वो एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाता है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप अगर वो 5-10 मिनट अगर डेली लगा रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट कंपाउंड होता है, वो मल्टीप्लाई करता है. तो आई वुड से अगर बहुत सारे अगर बुक्स नहीं भी पढ़ सके तो एक चैप्टर जो मैजिक ऑफ हैबिट्स मेरी बुक में, वो आप जरूर पढ़े, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इट. सर वैसे तो बहुत मतलब काफ़ी सारे आपके चैप्टर्स हैं, आई थिंक अराउंड 10, हाँ 13 13 चैप्टर्स है. चैप्टर्स हैं इसमें. फिर भी सर आप में मतलब कौन सा है, एक ऐसा चैप्टर है जो सब कुछ मतलब कंपाइलेशन ऑफ ऑल, अच्छा जिसमें या फिर आप सोचते हो कि जैसे किसी को कि बहुत अगर पूरा कोई ना पढ़ अगर पा बोले रहा कि है, हाँ तो तो उसको एक कोई पर्टिकुलर कोई चैप्टर पढ़े. पढ़ना तो हो, आई वो कौन थिंक सा चैप्टर? अगर मैं खुद से अगर कोई पूछे कि अच्छा आपका सबसे फेवरेट चैप्टर क्या है, तो आई से इट इज ऑन हैप्पीनेस, ना. क्योंकि इवेंचुअली हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी, है ना, मैं यहाँ हूँ, द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कहीं भी कोई कुछ कर रहा है, इट इज टू बी हैप्पी. फाइनली हम जो भी कुछ कर रहे हैं, कोई चाहे पैसे कमाने के लिए, कोई कुछ नाम कमाने के लिए, वॉट एवर दे आर डूइंग, अगर हम किसी को बोले कि चलो आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत फेम होगा, बट यू विल नॉट बी हैप्पी, तो ही वोंट एक्सेप्ट इट ना. वो बोलेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नो. फाइनली तो आई हैव टू बी हैप्पी. सो मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च किया था और काफ़ी अपना एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर किया अबाउट हैप्पीनेस. एंड फाइनली अगर ना सबका निचोड़ जो मैंने एक दो जगह मेंशन भी किया है, व्हाट आई रियलाइज ऑल्सो सीमा, और ये आई थिंक व्यूअर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है और हमेशा समझ में नहीं आएगा कि अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज इन द प्रेजेंट, इस मोमेंट में. बहुत लोग बोलेंगे कि अरे कैसे हुआ, इस मोमेंट में सोचो आया मेरे पास अच्छा जॉब नहीं है, या मेरा ब्रेकअप हो गया, या ये हो गया, चीज़ें ठीक नहीं है, हो सकता है कि 6 महीने बाद मैं हैप्पी रहूं. लेकिन एक्चुअली बात वो दोज आर लाइक जो एकर्ट टोल ना बोलते हैं, दो दो चीज में डिवाइड करते हैं. वन इज आवर लाइफ एंड वन इज द लाइफ सिचुएशन. लाइफ सिचुएशन बदलते रहेंगे. आज आपका ब्रेकअप हुआ, कल मेकअप होगा, परसों कुछ और होगा, ये चीजें होते रहेंगे. आज आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, कल कम है, परसों कुछ और होगा. बट वेन वी अनकंडीशनली एक्सेप्ट दिस मोमेंट एंड वी रियलाइज कि जो हमारा प्रेजेंस है, इट इज डीपर देन थॉट्स एंड इमोशंस, देन वी रियलाइज कि इस मोमेंट में देर इज एवरीथिंग फॉर अस टू बी. एंड एक्चुअली हमारा जो नेचर है, जो हमारा एसेंशियल नेचर है, इट इज हैप्पीनेस. और वो अगर अगेन फ्रॉम हम अपने जो हिंदू कल्चर में ही अगर ये करें, तो सच्चिदानंदा जो है, इट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट इनर नेचर. ना वो सुन के लगता है कि ये तो बहुत भारी भरकम टर्म है, और उसको सिंपली वे में सिंप्लीफाई करें तो यही है कि आर नेचर इज हैप्पीनेस. तो इस बुक में मैंने लाइक एक रूपर्ट स्पायरा है जो टीचर है, उसका एक बुक है यू आर द हैप्पीनेस यू सी. उस बुक से मुझे बहुत सारे लर्निंग हुए, और भी कुछ बुक से जो मैंने ये किया. तो आई वुड से कि अल्टीमेटली अगर हम हैप्पीनेस पर फोकस करें, क्योंकि हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली जो भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, इट इज टू बी हैप्पी. why not make that our target? Why not try to understand what happiness is? And once we know that, then फिर हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्म. तो मैं यही बोलूँगा कि इस चैप्टर में खासकर हैप्पीनेस, अगर किसी के पास एकदम ही टाइम नहीं है और बोले कि चलो मैं एक ही चैप्टर पढूं,
क्योंकि ये बुक ऐसा है कि आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सीक्वेंस वाइज फर्स्ट चैप्टर से लास्ट करना है, आप कहीं भी कुछ उठा के यू विल गेट सम लर्निंग। तो आई से डेफिनेटली दैट इज माय फेवरेट चैप्टर। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये चीज़ पूछी। दो मुझे पता है, जब हम कोई किताब स्टार्ट करते, कोई भी बुक रीडर स्टार्ट करता है और इस बुक में इतना कुछ लर्निंग के लिए है, तो आई डोंट थिंक कि कोई एक ही चैप्टर लेके उसको छोड़ेगा। इट्स अ काइंड ऑफ पेज टर्नर, इट्स माय सजेशन एज इट। सो सर, एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, बिफोर दैट सर, आपने बहुत सारे राइटर्स की बात करी है इस बुक में, आपने काफ़ी सारे कोट्स मेंशन करे। सो सर, आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट आवर व्यूअर्स एनी थ्री ऑफ योर फेवरेट फेवरेट बुक्स एंड राइटर्स है ना। Yes. तो सबसे पहले तो है एकर्ट टोले, है ना, जिसका पावर ऑफ नाउ है। वो एक्चुअली बुक इनिशियली मुझे सबसे ज़्यादा वही ट्रांसफॉर्म किया था। वो बहुत साल, वो 10 20 12 साल पहले, 2008, मतलब 14 साल हो गए, है ना, 14 या 15 16 साल हो गए तब मैं पहले पढ़ा था। एंड दैट फिर क्या होता है कि हम बिजी हो गए अपने काम में और सब में इन्वॉल्व हो गए, तो मैं पढ़ता था फिर ये। पर जब ये सारे सिचुएशन आए तो आई ऑलवेज केम बैक टू दैट, द पावर ऑफ नाउ। उसका और भी एक दो बुक है, द अ न्यू अर्थ, स्टिलनेस स्पीक। सो एकर्ट टोल की बुक जरूर पढ़े, दैट इज माय ऑल टाइम फेवरेट। Okay. देन रूपर्ट स्पायराकी, है ना, इज अ टीचर एंड एन ऑथर आल्सो, है ना। तो उनके अगेन बहुत सिंपल मैसेजेस है जो एंड पीपल कैन अंडरस्टैंड इट वेरी सिंपली, और बहुत डेप्थ भी है। देन एक है, देयर इज वन बुद्धिस्ट नन, पेमा चौटरन, है ना, उसका एक बुक है व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट, तो उसमें एंड दो तीन और बुक्स है। तो उसमें भी उनके भी ना वेरी प्रैक्टिकल टीचिंग्स अबाउट हाउ टू डील विद अनप्लेजेंट सिचुएशंस। किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डाइवोर्स हुआ, फाइनेंशियल लॉस हुआ, देन इट्स अ लॉट अबाउट हाउ वी अप्रोच आवर इमोशंस। तो अगर तीन में ये है, और तो बहुत सारे हैं, but these are my three favorite. Thank you so much for these wonderful suggestions, sir. So my last कि एक request फाइनल from you मैसेज is, हाँ जी सर, एक तो मैसेज आप ऑडियंस को अगर दीजिए। ऑडियंस को, थैंक यू सो मच सीमा फॉर दिस टॉक एंड ऑडियंस फॉर लिसनिंग टू इट। तो अगर अल्टीमेटली मैं अगर कोई एक मैसेज देना चाहूँगा, तो इट विल बी से यस टू दिस मोमेंट। से यस टू दिस मोमेंट, वो चाहे जिस फॉर्म में भी आ रहा है, वो फॉर्म आप शायद वो चाहते नहीं हो कि वो उस फॉर्म में आए, बट व्हेन वी स्टॉप रेजिस्टिंग दिस मोमेंट, when we accept it unconditionally, then we can see that will itself pave the way for happiness and joy and fulfillment. So I'll say just we have to practice saying yes to this moment। और इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो चेंज करना है वो भी करें, बट फर्स्ट हम एक एक्सेप्टेंस लाएं, नॉन रेजिस्टेंस एंड। सो दिस इज द मैसेज। Thank you so much, sir. Thank Thank you you, for thank you। coming and thank you for giving us your precious time. थैंक्स अ लॉट सीमा एंड क्वेश्चन इवेंट्स, आप लोग इतना बड़ा सपोर्ट रहे, ये बुक आज इस मकाम तक पहुंचा है, इसमें आप लोग का Thank you बहुत so बड़ा much. हाथ है। Thank you नो so राइट much, फ्रॉम द sir. टाइम हमने ये लॉन्च किया, उसके बाद से इतने सारे इवेंट्स किए। सो Thank you थैंक so यू। much. So, to the audience, again, I am recommending this book, RX for Resilience. As we already told, this book is available worldwide, online and offline both. So, you can grab it, and I'm sure this is a page turner. I'm also going through it, and there is a lot of learning and in very easy way. So, thank you so much for being with us. Bye bye.